آپ سب کو رمضان المبارک کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ میں بھی چھت پہ ہوں، میں بھی اس وقت چھت پر ہوں اور چاند دیکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں تاکہ کہیں سے رمضان کا چاند نظر آ جائے، اور جتنی ہو سکے آپ سب کے لیے دعا کروں اور اپنے لیے دعا کروں اور اپنے مرحومین کے لیے بھی دعا کروں۔ پتہ نہیں اگلے سال یہ چاند دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ باقی آج تو کنفرم ہے جی کہ صبح ہماری انشاءاللہ پہلی سحری ہوگی۔ اس وقت گاؤں میں بالکل شام کا خوبصورت سا منظر ہے، الحمدللہ سے مغرب کے بعد کا ٹائم ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا جی ابھی سے لے کر سحری تک کی روٹین شیئر کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جی کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ میں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی لیکن مجھے چاند کہیں سے نظر نہیں آ رہا۔ کافی ٹائم ہو گیا مجھے یہاں پر چاند دیکھتے ہوئے، شاید کہیں نیچے ہوگا، کیونکہ ہر دفعہ جو ہے نا یہ والا جو کھجور نظر آ رہا ہے نا، یہ والا اس کے بالکل ساتھ ہوتا ہے نا یہاں پر، تو آج یہ کھجور بھی دیکھ لیا، یہ بھی دیکھ لیا، یہ سارے دیکھ لیے، لیکن ہوتا صرف اسی جگہ پہ ہے، تو چاند تو نظر نہیں آ رہا۔ ویسے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان ہو جائے گا۔ نیچے چلتے ہیں اور بیگم کو کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا جو ہے نا لک آزما لے، شاید اس کو نظر آ جائے۔ یہ ہر شام کو میری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ سیڑھی کو یہاں سے ہٹانا اور سولرز کو جو ہے نا وہ صبح کی ڈائریکشن میں سیٹ کرنا، کیونکہ صبح ہوتے کے ساتھ ہی سولرز جلدی چل جاتے ہیں اور سیڑھی ہٹا دیتے ہیں، پھر صبح کے ٹائم لگا کے دوپہر کے وقت تو پھر ان سولرز کو جو ہے نا مغرب کی طرف موو کرا دیتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کو بلاتے ہیں اور پھر اپنی قسمت آزماتے ہیں۔ آج میری اس بہن کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی جو کہا کرتی ہیں کہ رات کی روٹین، رات کی روٹین، رات کی روٹین۔ اب آپ کو رمضان میں رات کی روٹینیں ہی ملیں گی۔ ہاں جی، احمد صاحب نے تو اپنی قسمت آزما لی ہے، لیکن اب میں دیکھتی ہوں شاید مجھے نظر آ جائے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب بہن بھائیوں کا؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ دن کے وقت بھی دروازہ کھولتے ہیں تو کیا ویو ہوتا ہے، اب رات کے وقت کا دروازہ کھولا ہے تو یہ ویو ہے جی۔ یہ ہے ہمارے گاؤں میں شام کا خوبصورت سا منظر، اور مغرب کے کافی بعد کا منظر ہے یہ۔ ہاں جی بالکل۔ میں تو کافی دیر سے رابطہ ٹرائی کر رہا ہوں، یہ والا کھجور جو ہے نا اس والے کھجور کے ساتھ نظر آتا ہے نا یہاں پر، لیکن ابھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن ہے تو کنفرم نا آج؟ کوئی پتہ نہیں نہیں ہے، کنفرم تو ہے رابعہ، کیا ہو گیا؟ اللہ کرے۔ ایک دن بعد ہی ہم چلتے ہیں نا، تو آج پاکستان میں ہے جی 18 فروری۔ ہاں، اور انہوں نے کہا تھا کہ 18 کی سحری کھائیں گے اور 19 کا روزہ رکھیں ہاں گے۔ تو پھر انشاءاللہ قاری صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم حضور، ٹھیک ہو؟ سنو سویرے روزہ ہے؟ اسائیں دے تھے تا کھڑو نظر دا تا نہیں، ہاں اعلان کر دیو جو انشاءاللہ انشاءاللہ نظر ونجے تا سارے حق کے دعا کرے سو انشاءاللہ، آمین آمین آمین۔ آپ دعا کریں۔ نہیں میں تو سب دیکھنے والوں کے لیے بھی دعا بالکل کر بالکل رہا تھا، کریں اور گے، اور سب کے لیے میں نے تو وظیفہ بھی نظر ڈاؤن نہیں لوڈ، آ رہا جی اس طرف نا، اصل میں دھواں کافی زیادہ ہے نا، آگ دھواں لگی بھی ہوئی ہے نا، نا، وہ دیکھیں اور وہ میں نے تو اپنے لیے احمد وظیفہ بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے چاند دیکھنے کا۔ وہ دیکھیں دھواں ہے، اور اس کے ساتھ پھر اس طرف جو ہے نا بادل ہیں کافی نا اس طرف، ویسے ابھی بالکل باریک ہوگا، بالکل باریک۔ کہیں وہ ہمیں نظر آ جائے گا، چندہ ماموں کہیں نہ کہیں نظر آ جائیں گے۔ اللہ پاک سب کو اس کی برکت عبادتیں اور اللہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور میری طبیعت میں بہتری لے کر آئے، اور میں اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادتیں کر پاؤں انشاءاللہ۔ کافی کوشش کر چکے جی، نظر نہیں آیا۔ قاری صاحب بھی واپس جا رہے ہیں، بس ابھی گورنمنٹ کا اعلان کریں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹی وی میں جو اعلان ہوگا پھر اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ نظر آ گئے سر؟ کیا نہیں آیا نظر؟ ہاں مسجد تو دیکھو، میں چھت تو ڈٹھم پر نہیں نظر آیا، آپ ابھی جلو مسجد ہے، مسجد کی چھت سے بھی نہیں نظر آئے گا۔ ابھی یہ جو کھجور ہے نا سامنے والے، انہی کے بیچ میں ہوتا ہے، تو یہاں سے جو ہے نا نہیں نظر آئے گا، اس جگہ پہ ہوتا وہ ہے، ماموں کی زمین میں چل لیتے ہیں، نہیں وہاں سے بھی نہیں نظر آئے گا۔ شاید نظر آ جائے کہیں نہ اب کہیں۔ اندھیرا ہے آگے اس طرف، تو میں تو نہیں جا رہا ہوں۔ قاری صاحب بس اب اوپر چڑھ گئے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے۔ ہاں ہاں، باقی جی دعا مانگنے کے لیے تو کافی بے چین تھے ہم، لیکن نظر ہی کہیں سے نہیں آ رہا، تو پھر اب کیا کر سکتے ہیں۔ دعا مانگ لیں تاکہ نظر آ جائے۔
हाँ शायद नजर ही आ जाए दुआ मांगने से। आप में से किस किस ने रमज़ान का चांद देखा था, ये ज़रा कमेंट्स में बताइएगा, और किस किस ने दुआ मांगी है। अगर हमारे लिए भी दुआ ज़रूर कीजिएगा, हमें तो नहीं नज़र आ रहा क्योंकि एक तो गांव है, फिर और फिर बादल भी हैं, उस तरफ धुआं भी है काफ़ी ज़्यादा। चले जो आप इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप सबसे कब? शहरी में। और जहाँ का गन्ने की फसल उड़ गई ना, तो उसकी जो पलाली बची हुई है उस पर उन्होंने आग लगा लगाई हुई है। तो मुलाकात होती है जी इंशाल्लाह शहरी शहरी में। में। आ जाओ राबिया, आ जाओ, अंधेरा हो गया बिल्कुल। अब ये मोबाइल की लाइट ऑन है तो आप लोगों को थोड़ी सी लाइट नज़र आ रही होगी, लेकिन वैसे बिल्कुल अंधेरा हो गया। चंदा मामू केड़े गए? चलो अभी तरावी की भी तैयारी करनी है, चलो आ हाँ, जाओ। मैं जब भी कह रही चंदा मामू केड़े गए, छुट्टी डाल दो पेपर करते हैं। आ जाओ चलो, चलो चलो चलते हैं, चलते हैं। आ जाओ। टीवी देखो और ऐलान का इंतज़ार करो, अभी मस्जिदों में ऐलान हो जाएगा। घड़ी नहीं बनी, मोबाइल पे अलार्म सेट कर देना मुझे और मेरे कान के नीचे रख देना वो मोबाइल को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाहर की लाइटें ऑन कर दी, आ जाओ। ये भी करो ना ऑन। वो दुकान से होगी, दुकान का ताला लगा है। चलो अभी हम दोनों आके बैठ गए हैं जी टीवी के सामने। यहाँ पर भी अभी बता रहे हैं जी कि फलां फलां जगह से जो है ना शहादतें मिल रही हैं, बांग्लादेश में ईद का चांद नज़र आ गया है। बांग्लादेशी मीडिया, और अभी कुछ देर तक पाकिस्तान का ऐलान भी तकरीबन हो जाएगा। इस्लामाबाद में चांद की तलाश है। हाँ, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट सब जगह पे जो है ना ये भी लगा चांद हुआ। की तलाश है। देखते हैं जी, वो 100% है राबिया, बांग्लादेश में ईद का चांद नज़र आ गया तो। जब रोजे होते हैं तो चांद देखने की खुशी होती है। 30वें रोजे चांद नजर आ जाता है। चांद देखो ना देखो, सुबह ईद है। अब चांद देखो या ना देखो, सुबह रोजा हर हाल में रखना है इंशाल्लाह। आप सब ने। छुट्टी नहीं करनी, ये नहीं समझना कि चांद नजर नहीं आया तो रोजा नहीं रखेंगे, रोजा रखना है। हम भी अभी इंतजार में हैं जी कि कब ऐलान होता है कब नहीं होता। हाँ जी, ये पकड़ो मेरा मोबाइल और अलार्म सेट करो इस पे। अच्छा जी, हाँ जी, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हो रही है जी हमारी तरावी के बाद वाली चाय। आप सबको भी रमज़ान मुबारक की पहली तरावी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में की, अल्लाह पाक आप सबके नसीब में करे, आमीन सुमा आमीन। आ जाएं हमारे साथ, तरावी के बाद की चाय पिएं। चाय, बस चाय पिएंगे, खाना वगैरह नहीं खाएंगे। मैं तो कहता हूँ इस रमज़ान जो है ना, वैसे रूटीन थोड़ी चेंज करते हैं हम लोग ना। हम पूरा साल दिन का व्लॉग बनाते हैं, दिन में जागते हैं, वो भी दिन में ही जागते हैं, रात को सोते हैं। इस दफ़ा हम करते हैं रात को जागते हैं, हाँ दिन को सोते हैं, हाँ उल्टा करते हैं। हाँ, उल्टा करते हैं। क्या वैसे ख्याल है? रह के इस माह रमजान भूखे रह के गुजारा करो और वेट हल्का करो मेरी तरह, और वे अपना लूज करो और डाइटिंग पे रहो। तो हम अभी सिर्फ चाय पियेंगे। अगर हमने रोटी खा ली तो शहरी में यकीन करें बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। शहरों वाले तो अमूमन जी वो तो पूरी पूरी रात ही जागेंगे। हाँ रमज़ान, कराची वाले तो वैसे ही पूरा साल जो है ना, उनकी तो एक रूटीन बनी हुई है, आदत बनी हुई होती है कि वो पूरा साल जागते हैं और रात को जागते हैं और दिन को जो है ना वो सोते हैं। बिल्कुल ऐसे। और सऊदी अरब में भी हमने यही सिचुएशन देखी थी, वहाँ तो पूरी रात जागते हैं जी, 1 मिनट नहीं सोते। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद सोते हैं और फिर असर की नमाज को उठते हैं या जोहर की नमाज को उठ के नमाज पढ़ के फिर सो जाते हैं, फिर असर को उठते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर मगरिब को उठते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ के तो फिर जागना शुरू कर देते हैं। हाँ, फिर तो एक रूटीन बन जाती है। एक रूटीन बन तो हम भी इस दफ़ा हम ऐसा ही करते हैं, हम रात रात का व्लॉग बनाते हैं, दिन दिन को सोते हैं। हाँ, नमाज रोज़ा रख के सो गए, जोहर की नमाज के लिए उठे, नमाज पढ़ी, फिर सो गए, फिर असर की नमाज के लिए उठे, फिर सो गए। नहीं फिर क्यों सो गए? फिर अफ्तारी का टाइम वो तुम बनाओगी ना, बस। मैं तो सो गया ना। क्यों सो फिर गए? अफ्तारी के टाइम उठाओगी, अफ्तारी करके फिर नमाज पढ़ूंगा, फिर बैठ के फिर मियाँ भी तरावी थोड़ी के सी बाद। हेल्प करवाते हैं ना, हर जगह पे मियाँ हेल्प करवाते हैं ना माह रमजान में, क्योंकि काम बढ़ जाता है, डबल काम हो जाता है। जैसे कि अभी मैं चाय बना रही हूँ और तुम प्यालों में निकाल के लेके जाओ। हाँ, ये जी बेगम साहबा की जिद आपको दिखाऊं, पिछले व्लॉग में मैंने जैसे इसी बस जिद हो गई थी कि मुझे सिलेंडर भरवा के ला के दे दो। ये छोटा सिलेंडर वो रखा हुआ है, ये बड़ा सिलेंडर मैं, ये तो कह रही थी थोड़ा भरा करो, मैं इसको मुंह तक करा के आया हूँ, यहाँ तक ऊपर तक। अब ये पूरा रमज़ान क्या, उससे अगला महीना भी चली जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्यों कि फिर कुछ अफ्तारी ना हम बाहर, वैसे देसी में ही बनती है अफ्तारी हमारी, अफ्तारी तो हमारी जैसे बाहर ही पकौड़े बनती है। वगैरह हो गए, ये हाँ, चीज़ें जो है ना और हमारी फिर बाहर ही बनती है। जैसे अब हमारा चूल्हा भी है बिजली वाला, वो भी हमारा यूज होगा, लकड़ी भी यूज होंगी, तो हमारी गैस बच जाएगी। हाँ, बच जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि रात को ना जब ये बंद करो ना, तो ये रेगुलेटर जो है ना बिल्कुल बाहर निकाल दिया करो।
मुझसे ऊपर। निकालना नहीं आता, तुम निकाल दिया करो। मैं तुम्हें समझा देता हाँ हूँ, मुझे समझा दो, ये इतना मुश्किल नहीं है। मुझे समझा दो ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये चाय पता है कौन सी वाली है? इलायची वाली चाय, स्पेशल किस्म की चाय और ताज़ा ताज़ा दूध की। ये रही इलायची, दिखाओ, ये रही, वो गिरी। आ जाए जी, सत बिस्मिल्लाह करन जी आए, नहीं तो हम अभी पियेंगे जी चाय और उसके बाद अभी करेंगे जी आराम। और अभी आप सबसे मुलाकात होगी रात के 3 बजे या 3:15 बजे या 3:30 बजे, मतलब के सहरी के टाइम इंशाल्लाह। तो वीडियो में साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया हुआ तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर लें। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम हो चुका जी सहरी का। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारी सहरी गांव की वैसे सिंपल सादा सी होती है, हाँ जी। इतना कोई हैवी चीज़ें नहीं बन रही होती जैसे शहरों में डबल रोटी ये वो। मक्खन वगैरह, डबर रोटी यहाँ वगैरह। पर सीधे सीधे बस ये घी वाली रोटियां बनेंगी हाँ, वो भी हल्के घी की, ताकि रोजे में ना खट्टी टकारे ना आए। और उसके साथ फिर बन रहा है जी उस तरफ चाय और हाँ जी। सालन हमारा जो हमने बनाया था वो ये अरे रखा हुआ है। नहीं नहीं बस छोड़ दो। छोड़ दो। अरे भाई माशाल्लाह, आज तो हमारे नन्हे नन्हे रोज़ादार भी उठ के आ गए। रोज़ा रखना है? क्यों? अभी तो तुम सुबह तो कह रही थी कि मैंने रोज़ा रखना है। रखोगी कहाँ पे? पहले अपनी जगह सेलेक्ट कर लो। कौन सी जगह पे? नीचे। इतनी ठंड में नीचे कैसे रखोगी? हैं? कौन सा? अकड़ जाएगा वो तो। कौन सा रोज़ा रखोगी? सीढ़ी रोज़ा नहीं रखना तुमने। रखना है तो पक्का रखो, नहीं रखना तो फिर ना ही रखो। हम छोटे होते थे ना तो हम ऐसे कहते थे, अम्मी से कहते थे कि चिड़ी रोज़ा। जब चिड़िया बोलते थे ना तो पानी का घूंट पी लेते थे, कहते थे हमारा चिड़ी रोज़ा है। खाना नहीं खाते थे, सिर्फ पानी पी लेते थे। अच्छा, उम्मीद नहीं थी कि हमारी आँख खुल जाएगी, लेकिन यह है कि बंदा जब नियत किसी चीज़ की करके सोता है ना तो अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, अलार्म से भी हम लोग पहले उठ गए। और अहमद यकीन करे, मैं सारी रात मुझे ना ऐसे बस है ना उधड़ कर, यानी कि ये उल्का रह गया है कि मुझे रोज़े सहरी के लिए उठना है, सहरी के लिए उठना। पहले मेरी आँख खुली है 12:30 बजे, मैंने कहा रोज़े कर, फिर मैं सो गई। फिर मेरी आँख खुली है 2:30 बजे, फिर मैं नहीं सोई। मैंने कहा नहीं अब जो आप वॉइस ओवर देख रहे थे जी, उसमें बेगम साहबा फेल हुई थी। 20-25 दफ़ा इन्होंने वॉइस ओवर की है, असल में मेरे सर में लेकिन नहीं कर सकी। फिर मजबूरन मैंने खुद वो वॉइस ओवर की है। हाँ जी। अब वो वीडियो जो है ना वो मेरी वॉइस में आएगी। चलें जी, फटाफट से बनाते हैं सहरी माशाल्लाह से, उसके बाद सहरी करते हैं। फिर आपको पता है कि ये देखिए सबके पराठे ना अभी बना दूंगी और बच्चों के भी अभी बना दूंगी। दोपहर में अक्सा वापस आएगी, उसके लिए भी अभी बना दूंगी, क्योंकि फिर तो मेरी शाम में इफ्तारी ही बनेगी। इंशाल्लाह। क्योंकि फिर रोज़े में ना नहीं किया जाता ये काम। अक्सा के लिए बनाऊंगी या कोई बच्चे आ जाएं तो उनके लिए मैंने अभी बना के रख दी। एक रोटी 2 रोटी मैं फालतू बना के रख दूंगी। ये देखें ना जी, हमने 3 बजे का अलार्म लगाया था और अभी 3:27 है। अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम माशाल्लाह से से। हो गया। चाय भी हमारी तैयार हो गई जी। आ जाएँ, सत बिस्मिल्लाह करें जी आए, हम हमारे साथ बैठ के सहरी करें। और उसको जवाब को बुलाओ। जैसे पहले सहरी बन गई ना तो ये मस्जिद भी है। हाँ, कारी साहब। अभी मस्जिद भेजते हैं। हाँ, कारी साहब जवाब को भी दी। उठा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे क्योंकि घर वाले उठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मेरी ड्यूटी है कि कारी साहब को सहरी इफ्तारी की। अब आप सबसे मुलाकात होती है हमारी सुबह कितने बजे होती है? उतने बजे उतने बजे। इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जवान साहब भी उठ के आ गए। चलो बेटा, एक काम करो, चाय बन जाए, ठीक है, और उसके साथ फिर रोटियां लो, सालन लो, चाय लो, कप लो, और ये सीधी अपनी ड्यूटी पूरी करो। मस्जिद जाओ, कारी साहब को सहरी दे के फिर वापस आओ, फिर ख़ुद बैठ के सहरी खाओ। तब तक सहरी भी बन जाएगी सारी।
हाँ फिर सहरी खाओ, सहरी खाने के बाद फिर अपना रोज़ा रखो। तुमने कहाँ रखना है रोज़ा? हैं? इधर इधर, तुमने रोज़ा कहाँ रखना है? अक्सर तो कह रही थी कि मैं फ्रिज में रखूंगी, तुमने कहाँ रखना है? हैं? कहाँ रखना है? जवाब देता है ना बंदा, तुमने रोज़ा कहाँ रखना है? कंफ्यूज हो गया लड़का के, पता नहीं ये कैसा पेट में सवाल है। रखना रोजा और कहाँ रखा जाता है रोजा? चले जी, अल्लाह पाक सबकी रोज़े बातें अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर वाले उठे हुए हैं, मेहमान भी हमारे उठे हुए हैं अक्सर को अल्हम्दुलिल्लाह। शोर न करे, भाई बड़े सोए हुए हैं। मैं अभी उनको भी उठाते हैं जैसे सहरी बन जाती है तो। हाँ वो कहते मैंने आज रोजा रखना है, लेकिन मैंने उन्हें कहा इंशाल्लाह। कि सारा दिन तुम्हारा काम है। अल्लाह पाक हिम्मत देता है, अल्लाह पाक। हिम्मत बिल्कुल 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 हिम्मत देता है अल्लाह पाक। सुबह बखैर, वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। 1:20 पे हमारी सुबह हो रही है। वह हमारी पहले ही हो गई थी, लेकिन हम लोग अभी जो है ना बाहर निकल, तकरीबन हम लोग 11:30 बजे तक बिल्कुल उठ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। और बच्चे जो है वो भी स्कूल से वापस आ गए। आप सब ने अक्सा को ख़ास तौर पे विश करना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस्लामी महीनों के हिसाब से आज पहला रमज़ान मुबारक है, और ये पहले रमज़ान मुबारक को ही दिन के तकरीबन नहीं दिन के नहीं, अफ्तारी करने आई थी। अफ्तारी के टाइम ये पैदा हुई थी। हाँ जी हाँ जी। तो जी हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। अल्लाह पाक आपको लंबी दादी बनाए, नानी बनाए, उससे भी बुढ़िया बनाए। बोलो आमीन। नहीं नहीं बोलो बुढ़िया ना बनाए। हाँ ऐसे ऐसे लकड़ी पे चलो, ऐसे ऐसे नहीं 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 बोलो ऐसे बुढ़िया ऐसे। ना बनाए। हाँ और वो कहते नहीं, वो कहते नहीं कि जवानी दा नौ ते बुढ़ापे ते तक्के। बेगम साहबा भी उठ गई हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी से हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी रूटीन वाइज। क्योंकि दो जैसे तो आप बजने सबको वाले। पता है कि हाँ अफ्तार की, और दिन वैसे भी काफ़ी छोटे हैं, तो अभी से अफ्तार की तैयारी करनी होगी। और बेगम साहबा हम जा रही हैं शहर की तरफ, कह रही हैं कि कोई अफ्तार के लिए कोई फ्रूट वगैरह कल नहीं लेके आए थे, कुछ फ्रूट वगैरह भी लेने हैं, और उसके साथ कुछ और भी सामान जो है ना हमने लेना है। और आज हादिया अक्सर से भी वादा था कि आज जो है ना आप लोगों को नया सूट पहनाएंगे, और उनके दुपट्टे कल भूल गए थे, तो वो दुपट्टे वगैरह भी इनके आज मेरे ख्याल में लेने हैं, 2 दुपट्टे। तो आप सबका रमज़ान का पहला रोज़ा कैसा जा रहा है ये आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह से गांव का मौसम की अगर बात करूं तो आज काफ़ी सुकून है, हवा चल रही है। नहीं नहीं सुकून है, हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह से, और ऊपर आसमान पे बिल्कुल गर्दिश है हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन धूप तेज है। धूप तो सुबह है। जब मैं उठी हूँ ना, यकीन करो तकरीबन 11:30 बजे आंखें ना यूं कर अच्छा, हमारे महकमे औकाफ वालों का आपने वो चेक किया था, किस किस ने टीवी देखा है कि इशा की नमाज में तकरीबन कोई 5 मिनट रहते थे, तो इन लोगों ने पहले बाद में बैठ के जो है ना ऐलान किया है कि कल पहला रोज़ा होगा। वैसे हमें तो पहले ही पता चल गया था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़ा होगा लाजिम से, तो लेकिन ये घुमा फिरा के अब इशा की नमाज को 5 मिनट रहते हैं, बंदों को तरावी की भी तैयारी करनी होती है, मुख्तलिफ तैयारी। लेकिन जो समझदार हैं वो पहले ही तैयारी करके बैठ जाते हैं। मैं तो वज़ू वगैरह बना के ही बैठा हुआ था, मुझे पता था कि इन लोगों ने जो है ना यही कहना है जी। अल्लाह पाक आप सबको रमज़ान की बरकत चांद नजर आता भी ना भी आता ना, तो आज रोजा लाजमी होना था, क्योंकि वैसे भी एक रोजा खाई जाता है, या 29 की ईद करते हैं या फिर 30 की ईद करते हैं। और इस दफ़ा भी वे पहले 17 फरवरी का रोज़ा कह रहे थे, फिर कह रहे कि 18 फरवरी को होगा, और फिर जब चांद ना नज़र आने की सूरत में कहीं नज़र आया कहीं नहीं नज़र आया, फिर कह रहे कि 19 फरवरी को, और ये शुक्र होगा 18 को ही हुआ है। अच्छा जी, आप सबको हमारा ये रमज़ान का पहला व्लॉग रूटीन वाइज, रात की रूटीन ख़ास तौर पे पूरे व्लॉग में आपको दिखाई है। हाँ कैसी जी। लगी कैसी नहीं लगी ये आप सबने बताना है, क्योंकि रमज़ान में एक तो टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, फिर बंदा रोज़े की हालत में अच्छा होता है, पकोड़े काफ़ी सारी आलू चीज़ें। वाले बनाने या वो बाद का मसला कचौरी है, वाले? वो बाद का मसला है, वो बाद में डिसाइड करेंगे कि क्योंकि क्या मैं करना है शहर से क्या जब करना है। आऊंगी ना, टाइम बिल्कुल ही खत्म हो चुका होगा मेरे पास। वैसे मैंने इसको मना किया है कि पकौड़ों वगैरह से जो है ना दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है, मैं तो क्योंकि खाती बंदा भी नहीं। सारा दिन एक तो भूखा होता है, मैदा बिल्कुल खाली होता है, और फिर जब ऐसी चीज़ें मैदे में चली जाती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान मैं होते हैं। वैसे खैर भी जी, मैं आम दिनों में ना एक दफ़ा मैंने खाए थे,
जब मैंने जैसे घर बनाए थे वो वाले, जब बारिश थी तो और पकौड़े वगैरह बनाएंगे भी कभी तो हम घर में बनाएंगे, बाजार से नहीं लेंगे, और क्योंकि मैं तो बाजार पूरी वालों रात में नहीं तो सो पाई बाजार वो वाले दिन। कच्चे भी होते हैं, और वो आज तो खैर ताज़े मिलेंगे, लेकिन कल से जो है ना फिर ये लोग क्या करते हैं कि जो बच जाते हैं वो फिर फ्रीज में रख देते हैं, फिर दूसरे दिन उनको जो है ना गर्म करके तो फिर वो चला देते हैं, तो वो फिर बंदे की सेहत के लिए भी काफ़ी नुकसान है। हाँ, फ्रूट खाएं, काफ़ी सारी चीज़ें और हैं अल्लाह पाक की मैं नेमतें, फ्रूट वो वगैरह खाएं। लेकर आऊंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। हमारा आप सबको बहुत बहुत, हमारा नहीं हमारी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक आप सबको सलामत पूरे रखे। रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। हाँ जी, बरकतें लुटने आमीन की तौफीक सुमा अता आमीन। फरमाए। आप हमें अपनी दुआ में याद रखेगा और हमारी दुआ में आप हमेशा से हैं, जब तक जिंदे हैं आप सबके लिए दुआ करते रहेंगे। इंशाल्लाह अभी हमने ये रूटीन बनाई है कि जैसे मैंने अभी आपको व्लॉग दिखाया है कि सहरी की रूटीन, और इस व्लॉग में आपको अफ्तार की रूटीन हमारी नहीं मिलेगी। ये अफ्तार की रूटीन आपको मिलेगी हमारे कल के व्लॉग में। हाँ जी, कि और हमने इस तरह अफ्तार में क्या क्या बनाया है, और इस तरह से जो है ना हमारा फिर टाइम मैनेजमेंट भी ठीक रहेगा, और हमारा व्लॉग जो है ना और वो भी रेस्ट नहीं भी रुकेगा, करने के लिए मिल और जाएगा। रेस्ट भी जो है ना हमें थोड़ा करने के लिए मिल जाया करेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होती है आप सबसे इंशाल्लाह कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर। और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।